Welcome back to Just Nursing Things. So today we are going to discuss about the AIMS BSc Nursing Strategy Plan. So mainly we are going to discuss that how to prepare so that we can score 85 plus and get selection in one of your dreamed aims. So without wasting the time, let's start with the strategy plan. So yeah, before starting it, let's know somewhat eligibility criteria for short. So mainly आप 12 पास हो with PCB and medically fit हो, and yeah, we can now start with our strategy how to score 85 plus. So before starting it, let me clear the marking pattern which is currently going on. So for every correct answer you will be allotted plus 1 mark, or for every wrong answer there will be minus marking. So we have to be aware that we are doing with all confidence या कि ये सही है, because here negative marking is there, and negative marking makes a major drawback in devastating changing our position in the competition. So yeah, negative marking has to be considered. तो आप इसको mind में रखिएगा कि that when we are marking in, so we are very confident that yeah, this is correct. So now let's start that how to means practice or learn to means correctly do our MCQs which are going to come in exams. So let's start with our major topic. So mastering our subject. So mainly we are having PCB and 10 mark GK is there. So let's come on high weightage subject that 30 marks का होता है and 10 marks goes for GK. So 30 plus 30 plus 30 we are having our PCB and plus means 10 for GK. So here we can do what is that in these three subjects we know we can make our two of it more stronger. Like most of students find bio as easy subject. So bio we can say that इतनी अच्छे से MCQs प्रैक्टिस कीजिए दैट मीन्स यू नो दैट विच आई एम मार्किंग दिस, सो दिस हैज़ टू बी राइट. इट मतलब कोई तुक्का नहीं मारे, जैसे कि वी नो दैट अगर हमने इस पर वो कर दिया तो फिज़िक्स केमिस्ट्री की तो कोई गारंटी नहीं है. सो मेक वन पार्ट योर वेरी स्ट्रॉन्ग, ताकि वन पार्ट कैन गिव अस कॉन्फिडेंस दैट या आई हैव डन दिस मच करेक्ट इन दिस, so I am scoring above 75 or 85 plus. So yeah, biology is mean to build confidence, so you can take it as your scoring subject. तो इसमें आप mainly कर सकते हैं कि आप जितने भी चैप्टर है उसे n number of time you can go through it, and after that solve n number of MCQs for any exam. You can say government exam, MCQs practice is must, you know. So अगर आप चैप्टर पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं नोट्स एंड ऑल, बट आप MCQs नहीं प्रैक्टिस करते हैं तो इट नॉन ऑफ यूज़, यू नो. कि मतलब मीन्स वी नो दैट MCQs प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो सेटलमेंट होता जाता है हमारे माइंड में, याद दैट ऐसे क्वेश्चन के ऐसे फ्रेम हो सकते हैं क्वेश्चंस, यू नो. सो बायो इज़ द थ्योरी पार्ट वी कैन से, तो इसमें और मेजरली रट्टाफिकेशन होता है, तो वी कैन स्कोर दिस. लाइक फिजिक्स में नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसमें तो MCQs मेनली न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उसमें हम ये नहीं कर सकते ना कि गारंटी के साथ कि हाँ मेरा ये सही होगा. बट बायो में ऐसा नहीं है. अगर हम किसी चीज़ को मीन्स पढ़ रहे हैं लाइक ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो नो वी नो दैट या इसका आंसर यही होगा, वो चेंज नहीं हो सकता है बाद में. सो या वी कैन वॉट ऑल आई कैन से इज़ इन शॉर्ट दैट बायो में मेक इट वेरी 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 स्ट्रॉन्ग. स्पेंड मेजर ऑफ योर टाइम, लाइक बायो को ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए. लाइक मॉर्निंग यू कैन स्टार्ट विद योर बायो, 2 hours यू कैन गिव टू बायो एंड 2 hour फॉर इट्स MCQs प्रैक्टिस. सो अगर आप 4 hour इन्वेस्ट कर रहे हैं बायो में, सो आई कैन मीन्स गारंटी यू दैट या यू विल गेन कॉन्फिडेंट दैट या नाउ इफ़ यू आर गोइंग टू सॉल्व MCQs, so you get some assess that yeah I am scoring well in that. So now let's flip to chemistry. So chemistry is also divided into two part, you know, organic and inorganic chemistry. So in we know mainly इसको हम जो हमारी part stronger है
पहले आप उसको उठाइए। लाइक मीन्स बहुत बच्चों की ऑर्गेनिक स्ट्रांग होती है, बहुत बच्चों की इनऑर्गेनिक स्ट्रांग होती है, तो इट डिपेंड ऑन योर कंडीशन दैट विच पार्ट ऑफ योर इज स्ट्रांग। सो मेनली इसमें भी वी कैन गो थ्रू दैट ओनली दैट चैप्टर को पढ़ा, ओके नाउ लेट सॉल्व एन नंबर ऑफ MCQs। लाइक जितने MCQs आप सॉल्व कर सकते हैं इज़ वेरी मस्ट, एंड मीन्स क्वालिटी वाइज कीजिए, लाइक क्वांटिटी में सॉल्व करना इज़ नॉट मीन्स स्मार्ट प्लान, यू कैन से। लाइक क्वालिटी MCQ सॉल्व कीजिए जो कि PYQ में आए हों। लाइक यू हैव टू नो दैट कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लाइक वैसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस मोर एंड मोर कीजिए, एंड गो थ्रू मीन्स डीपली इन NCERT, फॉलो NCERT स्ट्रिक्ट। लाइक NCERT के बाहर वी नो दैट नहीं आता है, बट सम ऑफ द स्टूडेंट फाइंड दैट इफ सम क्वेश्चन कम फ्रॉम आउटसाइड, इट्स नॉट लाइक दैट, एवरीथिंग कम्स इनसाइड NCERT। सो मेक मीन्स आपने मतलब जो भी पढ़ा है उसको कॉन्साइज कीजिए, सम अप कीजिए, एंड या NCERT के बाहर नहीं कुछ आएगा तो केमिस्ट्री में यू हैव टू टोटली फोकस ऑन NCERT टिप्स पे रखिए। एंड फिजिक्स वी आर कमिंग, सो लाइक केमिस्ट्री को आप 2 आवर्स दे सकते हैं फॉर इट्स मीन्स यू नो मेजर तो हमने बायो को दे दिया है, अब नाउ केमिस्ट्री और फिजिक्स को मीन्स यू हैव टू मेक योर टाइम मैनेजमेंट वेरी अप्रोप्रिएट, ताकि आप दोनों को जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग पोर्शन हो उसे आप ज़्यादा टाइम दे सको। मोस्टली बच्चों की फिजिक्स स्ट्रांग होती है, बट यू नो सम बच्चों की केमिस्ट्री भी स्ट्रांग होती है। सो या नाउ लेट्स कम टू फिजिक्स। फिजिक्स में आप जितना सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल, यू नो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इज मस्ट इन फिजिक्स, so without numerical practice it's not possible to score 85 plus. So make a formula sheet, stick to your wall, etc and etc, what you can do, and memorize करते रहिए, like ताकि आप मतलब वहाँ पे बहुत हेजिटेट मतलब वो रहता है ना, टाइम कम है एंड यू नो कि नहीं स्ट्राइक कर रहा होता है या स्क्वायर कहाँ है क्या, तो भूलने का चांसेस रहते हैं, तो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, यू नो टू द फॉर्मूलाज, इम्प्लीमेंट कीजिए, आंसर निकालिए, यूनिट में चेंज कीजिए, एंड स्मॉल स्मॉल चीज़ें जो होती हैं वी फॉरगेट सम टाइम, डू रिमाइंड दैट। एंड फिजिक्स में एंड लास्ट लाइक ऑल आई सेड practice n number of MCQs in that also. So in basic अगर तीनों को हम सम अप करें तो क्लियर ऑल कॉन्सेप्ट, लाइक आप कोई चैप्टर को उठा रहे हैं तो लाइक ये नहीं कि या हम मतलब रीड कर लिया हो गया, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, वी हैव टू नो दैट इस पेज में क्या है, इस पेज की समरी क्या है, लाइक इसमें से अगर कुछ आ जाता है तो हम रिमाइंड कर सकें यार लाइक इन दैट पेज इट इज़ रिटन दैट, और इसका यही होगा। और तुक्का तो आई से दैट प्लीज़ डोंट डू, लाइक नेगेटिव मार्किंग इज़ वेरी बैड, लाइक हमारे अच्छे खासे नंबर आ रहे होते हैं बट नेगेटिव मार्किंग लीड्स टू all game changing things, you know. Now let's come to second point, we are having practice MCQs daily, like 100 plus MCQs तो आप daily solve कीजिए, like we are having now very precise time, so we have to make sure that we are using it over the right place. सेकेंड थिंग इज़ दैट फोकस ऑन स्पीड एंड यू नो एक्यूरेसी, लाइक जितना टाइम अलॉटेड है कि हाँ मतलब इस क्वेश्चन को हम इतना ही टाइम दे सकते हैं, इसमें हम अगर पूरा हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे जो क्वेश्चन हमें आते भी होंगे टाइम नहीं बचेगा तो वो भी हम गलत करके आ जाएंगे। तो फोकस ऑन स्पीड ऑल्सो, लाइक इस मतलब इस क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन को मैं इतने इतने दूंगी, मीन्स आप मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपकी स्पीड यू नो आपकी बेटर हो जाएगी MCQs प्रैक्टिस का। नाउ रिवाइज NCERT बुक्स, लाइक NCERT I told you that it is the must that have to be covered, so thoroughly revision कीजिए NCERT की, because NCERT के बाहर नहीं आएगा, it's like that only. So take mock test, like I told you earlier, like mock test से हमें एक आइडिया मिल जाए where we are standing, we know that what is our performance and where we are standing in the competition. So mock test हमें एक real check देता है, like yeah we have covered this topic in this much and now we are here. और अगर हमारा नहीं अच्छे नंबर स्कोर नहीं हो पा रहे हैं, that अगर आपके 75 ही नहीं प्लस कर पा रहे हैं तो how you can go for 85 प्लस। तो जितने MCQ सॉल्व कर सकते हैं कीजिए mock test every weekend, go for mock test, give your weekend plans for whole day mock test, जितने मॉक टेस्ट करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरी स्पीड हो गई है अच्छी खासी, मुझे टाइम मैनेजमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, इट्स लाइक कोई भी क्वेश्चन आ जाए आई कैन कंप्लीट इन दिस मच टाइम। सॉल्व पास्ट पेपर मीन्स स्मार्ट वर्क होता है, इट्स लाइक कुछ लोग
क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, लाइक जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं होते हैं उसे भी 10 बार पढ़ेंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना है, लाइक हमें वैसा करना है लाइक ये हाई वेटेज का है एंड इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। यू आर थिंकिंग लाइक पास ईयर का एनालाइज करके। सो स्टडी क्वालिटी वाइज, लाइक जो पास में आए हैं उससे पुट ऑन हो सकते हैं, या उसके अगल बगल, या उसके मतलब उससे रिलेटेड टॉपिक्स आ सकते हैं, उसके अलग एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। सो अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सॉल्व MCQs wisely. So in last I would like to say that stay consistent and stay positive. Half of the battle is won if we stay positive. So अगर हम starting में ही our moral, our confidence goes down, then everything seems big. But if we know that means we are consistent, we are means doing every day better, so एक confident automatically build होती जाती है, like I am studying and I am doing, so maybe my consistency will pay me off one day. So with this I would like to sum up my all the content which we have discussed so far. So that master biology concept, we have made one our subject strong, and solve MCQs daily and follow consistent plan to score 85 plus and all. With that we are ending the section, and if you found the lecture helpful, do like, share and subscribe.